An acute angle measures between 0 degree and 90 degree, whereas a right angle is exactly equal to 90 degree. An angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. Obtuse. Also recall that a straight angle is equal to 180 degree. An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Further, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles, and two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। एक्यूट एंगल हम लोगों ने देख लिया, जो एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 एंड 180 के बीच में लाई करता है। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल लाई बिटवीन 180 टू 360, 180 और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, राइट। नाउ वन मोर एंगल इज गिवन हियर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल दीज टाइप ऑफ एंगल्स बिफोर, तो यहाँ पे सभी जगह पे एंगल लिखा होगा, एंगल एंगल एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री जब आपने देखा होगा तो यहाँ पे एंगल्स लिखा हुआ है। इट मीन्स इट इज नॉट अ सिंगल एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इफ यू लुक एट दीज टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे दो एंगल होते हैं, टू एंगल्स आर देयर। अगर उन दोनों एंगल्स का सम, सपोज वन इज एंगल एक्स एंड सेकंड वन इज एंगल वाई, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आए, then that two angles are called as complementary. So उन angles को क्या बोलेंगे, then angle x and y angle x and y are complementary angles. Right? इसको let me tell you this with the help of example. Suppose एक एंगल यहाँ पे है, suppose this angle is 30 degree, this angle is 40 degree and like this I can take it line like this. Suppose these are the two angles here. यहाँ पे दो एंगल्स हैं और इन दोनों एंगल्स का सम आ रहा है। सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस इज x एंड सपोज दिस इज y, so the sum of these two angle is equal to 180 is equal to 90 degree, so we can say that these two angles are complementary angle. आगे अगर आप देखेंगे, if you look at this line, two angles whose sum is 180 degree, अगर दो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री आ जाए, so then that two angles are called as, so let me ऐसे भी हो सकते हैं like this. Suppose this angle is 60 degree and this angle is 120 degree. So what is the sum of these two angle? Suppose this is x and this is y. The sum of these two angle is x plus y is equal to 180 degree. If the sum of the two angle is equal to 180 degree, in that case that two angles are called as supplementary angles. राइट, तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। ऐसे भी हो सकता है एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स का, कोई भी दो एंगल हो। सपोज इफ आई मेक अ लाइन लाइक, इफ आई मेक लाइक दिस इज द एंगल, this is line going like this, it's going like this. Suppose if this is angle, this angle is equal to 100 degree and this angle is equal to 80 degree, suppose. So suppose if this is x and this is y, so then the sum of these two angle is equal to 180. So hence we can say that this angle x and angle y are called supplementary angles, right? I hope this supplementary angle and complementary angle is clear to you. Now let's move forward. Look at this. Now let us discuss about adjacent angles. Look at this written on the screen.
Okay, Vaishnavi, what screen is visible to you? Yes, sir. Vaishnavi, could you please read this written on the screen? Yes, sir. You have also studied एक डिवाइस से लॉग आउट करना पड़ेगा, आपने 2 डिवाइस से लॉग इन करा होगा, तो फोन को पास में रख देते हैं तो इस तरह का इको हो जाता है। Yes, sir. Yes, read this. You have also studied about adjacent angles in the earlier classes. Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm in ABD and BBC are adjacent angles. ABD is their common arm and point B is their common vertex. Ray PA and ray BC are non-common arms. Moreover, when two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. So we can write ABC equals to ABD plus DBC. Note that ABC and ABD are not adjacent angles. Why? Because their non-common arms BD and BC lie on the same side of the common arms BA. Okay. Let me explain this. So basically here they defined about adjacent angles. Adjacent angles के बारे में बताया. Adjacent angles क्या होते हैं? Adjacent angles are like this. एक adjacent means पड़ोसी, नेबर, उसके जस्ट जो पास में रहता है. सपोज ऐसे हाउसेस बने हुए हैं ऐसे एक लाइन में. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. यहाँ पे हाउस है. In this line, these are the houses, right? और बीच में यहां से रोड जा रही है. यहां से एक रोड जा रही है बीच से, ठीक है? और रोड के इस साइड में भी कुछ हाउसेस बने हुए हैं. राइट? Suppose this is house number 1, 2, 3, 4 and it's 5, 6, 7, 8. Adjacent means पड़ोसी जो उसके जस्ट पास में है. So if you look at this, 1 का adjacent क्या है? 1 का पड़ोसी कौन है? 2. So 1 is, we can say that 1 is adjacent to 2, right? और 2 का adjacent कौन है? 3 और 1. 3 और 1 2 के adjacent है. Right? So these three, we can say that 2 and 3 are adjacent to each other. Right? So adjacent means पड़ोसी. Right? और एक वर्ड होता है adjacent और एक वर्ड होता है opposite. Adjacent का मतलब होता है, हाँ सर 5 जो है वो 1 के अपोजिट. यस. adjacent means होता है बराबर वाला, जो बराबर में होते हैं, मीन्स नीबर में होते हैं, पास में. राइट? अपोजिट मीन्स जस्ट सामने, जो रोड के जो सामने आ रहा है. इनके हाउस का जो गेट है और इनके हाउस का जो गेट है, 5 हाउस नंबर 5 का, वो गेट दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, अपोजिट टू ईच अदर. तो इनको बोलते हैं सामने वाले. सो ये बराबर वाले हो गए और ये सामने वाले. तो जो आपके जो अगर इस तरह से आप अगर ऐसे रहते हैं, ऐसे आपके हाउस हैं, इस तरह से है, आप कहीं भी कंडीशन हो सकती है. अगर इस तरह की कंडीशन में आप रह रहे हैं जिसमें आपके बराबर में भी एक हाउस हो, तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट. वो आपका पड़ोसी है, बराबर वाला. ठीक है? और जो आपके हाउस के जस्ट सामने वाला हाउस है, घर के सामने वाला हाउस, राइट, जस्ट सामने वाला, रोड क्रॉस करके जो सामने हाउस है, उसको बोलते हैं अपोजिट हाउस. राइट? So this is the meaning of these two words, adjacent and opposite. I hope you all know that things.
तो एक बार हमने इसको रिवाइज कर लिया है. Yes, sir. Yes, sir. It's raining outside in Greater Noida today. It start raining. Yes, sir. Sir, here it is not raining. Where? It's cloud. Sir, same Sir. also. Sir, here it's Surat. Greater Noida. Greater Noida, it's raining outside. सर नियर बाय स्कूल तो बारिश हो ही नहीं रही है. कहाँ पे? नियर बाय टू इट्स. सर स्कूल के पास तो बारिश हो ही नहीं रही है. बस ना आने मेरे वाली. एरिया में हो रही है ना दिव्यांशु के एरिया में हो रही है. अभी मैंने बोला है उनको, वो भेज रहे हैं, वहां पे भी भेज रहे हैं. जस्ट वेट 4-5 मिनट्स. बात हो गई है मेरी. जस्ट वेट, आने वाली है. ओके सर. ओके सर. फिक्र ना करें आप. ओके, नाउ यू हैव ऑल्सो स्टडीड दैट. अब एडजेसेंट एंगल, आप एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझ गए हैं. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एडजेसेंट एंगल्स होता है जैसे ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एंगल डीबीसी. दिस इज एंगल डीबीसी, राइट, एंड दिस इज एंगल एबीडी. तो ये देखो, ये एंगल क्या है. ये दोनों एंगल बने. एंगल किससे बनता है? 2 रेज से. 2 रेज से बनता है. ये देखिए, दिस एंगल डीबीसी इज मेड अप बाय दिस रे बीसी एंड दिस रे बीडी. तो ये रे बीसी और रे बीडी से बना है. और ये एंगल जो एबीसी है, इट इज मेड अप बाय एबी एंड बीडी. तो इसमें आपको बीडी दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे बीडी इज कॉमन. तो BD is used, this ray is used in both the angles. So this is called as common ray. इसको बोलेंगे common ray, right? And this AB and BC are called as non-common ray. Right? Non-common ray इनको बोलेंगे. This is called as non-common ray. So जो adjacent angles हमेशा बनता है, एडजेसेंट एंगल से कॉमन रे के साथ बनता है. एडजेसेंट एंगल्स इज मेड अप बाय द कॉमन रे. Adjacent angles is always made up by the common ray. It like this. Suppose this is a ray. This is the second ray. ये 2 रे है मेरे पास, and it is a single angle. अगर इसके बीच में कॉमन रे लगा दूं मैं, this pen, right? So this common ray may divide this angle, complete angle into the 2 angles. एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, right? So दोनों एंगल कैसे एंगल हो गए? पड़ोसी एंगल हो गए, right? So these 2 angles are called as adjacent angles when they are formed by a common ray. एक कॉमन रे से जब एंगल फॉर्म होते हैं, that 2 angles are called as adjacent angles. I hope this thing is little bit clear to you. Now if you read further, 2 angles are adjacent if they have a common vertex. So this point B is called common vertex. इस point B को, that point B is called as common vertex. ये common vertex है. common arm, BD is called common arm. common arm भी बोल सकते हैं, common ray भी बोल सकते हैं. And AB and BC are called non-common ray. In ABD, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ABD, DBC adjacent angles हैं, right? ABD. Okay, this is I have written wrong here. It's not ABC, it's ABD. ये ABD है, right? ABC is this complete angle. तो ABD and this DBC is adjacent angles हैं, right? I hope this thing is clear to you. And then their sum is always equal to the angle formed by the 2 common rays. तो ये कह रहे हैं जो एंगल ABC होगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल होगा, वो किसका सम होगा? इन दोनों एंगल्स का. इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, ये मैंने दिया था. तो दिस इज एंगल ABC, और अगर ये इसने डिवाइड कर दिया, कहाँ जा रहा है, रुको, ये डिवाइड कर दिया है, तो इसका सम और इसका सम, सपोज ये एंगल है 110, इसने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 110. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटन हियर, ABC एंड ABD आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. जो ABC है और ABD है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है.
एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है? बिकॉज देयर कॉमन आर्म्स BD एंड BC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म BA. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं इस पॉइंट में. इस पॉइंट में ये कह रहे हैं यहाँ पे जो एंगल ABC है, ABC कौन सा एंगल है? टोटल एंगल. ठीक है, ये किस किस आर्म से बन रहा है? BC और AB से, ABC. और एक एंगल देखिए ABD. ABD कहां पे? ABD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ABD है. तो क्या ये दोनों में कोई कॉमन आर्म है? देखो कॉमन आर्म है दोनों एंगल में. विच इज द कॉमन आर्म? AB. AB कॉमन आर्म है. ठीक है, तो क्या अब देयर इज अ कॉमन आर्म, सो वी कैन से दैट दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स. दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. तो केवल कॉमन आर्म के बेसिस पे भी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हों. क्यों? जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे होते हैं. लुक एट दिस वर्ड यूज्ड हियर, डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे. जैसे ये एंगल, ये कॉमन आर्म के ऊपर है और ये कॉमन आर्म के नीचे है, तो डिफरेंट साइड्स पे है. लेकिन ये कॉमन आर्म देखिए इस एंगल में ABC और ABD में कॉमन आर्म किधर आ रही है? कॉमन आर्म दोनों एंगल्स में एक साइड पे आ रही है. ठीक है, so these angles are not adjacent angles. I hope this thing is clear to you. Why it is not adjacent angles? कॉमन आर्म है वहां पे लेकिन वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. लेट मी इलेबोरेट इट लिटिल बिट मोर. सपोज एक रे यहां पे ऐसे है, ये कॉमन रे है और ये अनदर रे है. ठीक है, so if you look at this angle and this angle are adjacent. कॉमन आर्म है, यस कॉमन आर्म है. ये कॉमन आर्म के इस वाली साइड में है एंगल और ये कॉमन आर्म के इस वाली साइड में. तो दीज एंगल्स आर एडजेसेंट. यस, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट क्योंकि एक कॉमन आर्म के अप साइड में है और एक कॉमन आर्म के डाउन साइड में, अपोजिट साइड्स में है दोनों एंगल. सो वी कैन से दैट दिस एंगल X एंड Y, suppose if it is X and this is Y, so these angle X and Y are adjacent angles. Let us take a different example. Suppose एक there is a ray like this, एक रे ऐसे है. Suppose this is the common arm, ठीक है, and this is angle X. Suppose ये एक एंगल X है. This is common arm, yellow line. Now I am forming an another angle. एक दूसरा एंगल बना रहा हूं मैं यहां पे. Let me do it again. Look at this. Suppose this angle is Y. So these two angles are made up by the yellow line. Yes, these are made up by the yellow line. So this is the common arm. This is the common arm. Yes, it is having the common arm. Angle X and Y having the common arm also. But are they adjacent? क्या ये adjacent होंगे? No, they are not adjacent angles. Why? Because if they are adjacent angles, so angle must be on according to the definition of adjacent angle, angle must be on different sides. If you look at this definition here, angle must be, their non-common arm are on different sides. So जो नॉन कॉमन आर्म है, और वी कैन से दैट नॉन कॉमन आर्म arms must be on different sides. तो नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए. अभी मैंने एंगल से समझाया था, अब आपको आर्म से बताता हूं एडजेसेंट क्यों नहीं है. आर्म से देखिए, इसमें देखिए कॉमन आर्म जो है, कॉमन आर्म दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और ये नॉन कॉमन आर्म है. दिस इज नॉन कॉमन आर्म, NCA लिख दिया मैंने इसको, नॉन कॉमन आर्म शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, अब देखिए नॉन कॉमन आर्म क्या कॉमन आर्म से अपोजिट डिफरेंट साइड्स में है? यस, ये कॉमन आर्म से ऊपर देखिए, ये इस वाली, हाँ व्हाट हैपन? सर पॉज
Am I audible to you all? Am I audible? Yes sir. सर वो शायद से आपकी ना वीडियो कॉल। Yes, sir. Okay. And screen is also visible to you? Yes sir, screen is। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अब देखिए अपोजिट साइड्स में ये नॉन कॉमन आर्म, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपोजिट साइड्स में है, यस हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होगा। लुक एट दिस, इसमें देखिए कॉमन आर्म यहाँ पे है, क्या ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स में है? दिस साइड एंड दिस साइड नॉन कॉमन आर्म क्या अपोजिट साइड में है? नहीं, एक ही साइड में है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक साइड में नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए कॉमन आर्म के, ठीक है? सो देन इट इज एडजेसेंट एंगल्स, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, look at this. Next type of angle is linear pair of angles. Linear pair of angles. Okay, Divyanshu, could you please read this written on the screen? Yes, sir. If non-common arms BA and BC in figure 6.2 form a line, then it will look like figure 6.3. In this case, angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles. Okay, so basically linear pair of angle are the adjacent angles. ये adjacent angles होते हैं। देखिए यहाँ पे ये और ये adjacent क्यों है? Because they are made up by the common arm. Common arm से बन रहे हैं, that common arm is BD, और जो इनकी जो different arms हैं, this BC and this arm AB is lying on the different sides, right? अगर adjacent angles का sum 180 डिग्री आ जाए, so the sum of angle ABD and DBC, ABD क्या है? ABD सपोज इसको x मान लेता हूं और इसको y, तो अगर x प्लस y का सम अगर x प्लस y का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, then that angles are called as linear pair. That angles are called as linear pair of angles. या उन्होंने इसको डिफरेंट वे में डिफाइन किया कि अगर नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना लें, तब हम लोगों ने डिस्कस किया है जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन बना ली उन्होंने, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना आता है? स्ट्रेट लाइन पे एंगल आता है 180 डिग्री, राइट? सो ये स्ट्रेट लाइन किसने बनाई है? दो नॉन कॉमन आर्म ने, ए बी सी, बी सी और ए बी ने। सो ए और ये जो लाइन यहां से गई थी ये वाली लाइन, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? दिस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, then that angles are called as linear pair of angles. And if the sum of the two angles are equal to 180 degree, then they are also called as supplementary angles. So what is the difference between these two? Supplementary में और linear pair में difference क्या हुआ? तो difference इसमें यही है, the definition of supplementary is complete if two lines make an angle, if two angle sum is 180 degree, then that two angles are supplementary. वहां पे एडजेसेंट की कंडीशन नहीं होती है सप्लीमेंट्री एंगल में, यहाँ पे क्या है? एडजेसेंट होना चाहिए एंगल, और नॉन कॉमन आर्म को 180 डिग्री एंगल बनाना चाहिए लाइक दिस। सो तभी वो लिनियर पेयर होगा। अगर मान लीजिए दो एंगल ऐसे हैं, एक एंगल ऐसे है यहाँ पे, सो दिस इज द एंगल एंड वन एंगल इज दिस लाइक दिस, अगर इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री, बट ये जो नॉन कॉमन आर्म यहाँ पे लाइन नहीं बना रही है। नॉन कॉमन आर्म डू नॉट फॉर्म अ लाइन। If you look at this, like this is the example, supplementary angle. So if non-common arm are not forming a line, non-common arm line तो form नहीं कर रही है यहाँ पे, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे supplementary होगा, that is linear pair. I hope difference is clear to you. It's time up today. Rest of the thing we will discuss in the next class.